Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on Saptahik Visheshank, the hot topic of the week. So today we'll be covering Prime Minister Modi's Independence Day speech. This particular section is very important for all the examinations, but specifically for the UPSC, MPPSC, and the other state services exams. Because whatever Prime Minister Modi has mentioned, किसी famous personality का नाम लिया, किसी नई घटना के बारे में बताया, या कोई नई स्कीम लॉन्च की गई, ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आगे बढ़ने के पहले एक पेन और एक कॉपी अपने हाथों में ले लें और जिस भी टॉपिक के बारे में हम जो जो डिस्कस कर रहे हैं उसके की नोट्स लिखते चलें. सो लेट्स सी व्हाट इज इन द स्पीच. Prime Minister Shri Narendra Modi addresses the nation on India's 76th Independence Day from Red Fort, New Delhi. In his speech, Prime Minister Modi outlined a roadmap for the next 25 years, which will be India's Amrit Kal. The 15th August ceremony is particularly very significant and very important this year as it marks the 75th anniversaries of India's independence. To commemorate this and celebrate this, Indian government has launched Azadi Ka Amrit Mahotsav. And under this Azadi Ka Amrit Mahotsav, there were so many schemes and campaigns those were launched. And one of those are Har Ghar Tiranga. It was to encourage people to bring the Tiranga home and to hoist it to mark the 75th years of India's independence. Let's see. इसके लिए कुछ पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स, कुछ नए चेंजेस किए गए फ्लैग कोड में जो कहीं ना कहीं हमारे जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लेट्स सी व्हाट वर दोस चेंजेस. Earlier in the Naveen Jindal versus Union of India case 2005, Supreme Court allowed to waving national flag on the top of private building. That also includes in the right to freedom of speech and expression that enshrined under Article 19(1)(a). However, due respect shall be shown. Earlier, the tricolor was allowed to be flown from sunrise to sunset, irrespective of all the weather conditions. Now, a member of public, a private organization, or an educational institution is allowed to hoist the flag on all days and occasions, ceremonies, or otherwise consistent with dignity and honor of the national flag. Earlier, only hand-woven and hand-spun flags that were made up of cotton, silk, wool, and khadi were allowed. But now the Indian government allowed the production of polyester and machine-made national flag. This particular section will make the questions like क्या फ्लैग कोड में क्या चेंजेस हुए, नेशनल एम्बलम्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. साथ ही साथ जो तिरंगे की हिस्ट्री रही है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. Moving further to the speech, Prime Minister Modi also mentioned that India is the mother of democracy. जब इंडिया आजाद हो रहा था तो बहुत सारे देशों ने, स्पेशली ब्रिटिशर्स एंड द अदर नेशंस, मॉक अपॉन अस कि भाई इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी कास्ट है, इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स वर फाइटिंग विद ईच अदर. वो इंडिया के साथ पार्ट नहीं बनना चाहते थे. इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान. जो हमारे क्रिएटर्स रहे उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडिया एक यूनाइटेड फ्रंट बन के सामने आएगा. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो मेंशन दैट दिस सॉइल हैज पावर डिस्पाइट मैनी challenges. India did not stop, did not bow down, but kept moving. Next, he also emphasized on the good and healthy competition among states for the better and healthy development. He said that there should be cooperative, competitive federalism. Next, he remembered the contribution of freedom fighters like Bapuji, Netaji Subhash Chandra Bose, Baba Sahab Ambedkar, and Veer Savarkar. He also remembered the contribution made by the Desh ki Veerangna like Rani Lakshmi Bai, Jhalkari Bai, Chenamma Begum, Hazrat Mahal. आगे बढ़ने के पहले आई वुड लाइक कि आप सभी आजादी के अमृत महोत्सव की वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट करें बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन in which Ministry of Culture and Amar Chitra Katha has launched these 3 कॉमिक मैगजीन्स जिसमें हमारे जितने भी अनसंग फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है इन अ वेरी अट्रैक्टिव फॉर्म. Kalkari Bai. She was an advisor and soldier in the Women's Army of Rani Lakshmi Bai of Jhansi, where she played an important role in the Kranti of 1857. At the height of the siege of Jhansi, she disguised herself as the queen and fought on her behalf on the front, allowing the queen to escape safely out of the fort. Next is Rani of the Kittur Chenamma. She was an Indian freedom fighter. She was the first woman freedom fighter, led an armed rebellion against the British rule in India.
whereas a statue of Kittur Chennamma was unveiled in September 2007 at the Indian Parliament complex by the former President Pratibha Patil. The victory of Rani Chennamma is celebrated during the Kittur Utsav till the date now. The Utsav is celebrated during the month of October. Next is Begum Hazrat Mahal, the Begum of Awadh. She was one of the few women who challenged the Britishers during the revolt of 1857. But later on, she fought very bravely and finally found asylum in Nepal. Because of her brave heart and her nature, people used to call her the tigress. These particular sections are very important for the GS paper one as well as महिलाओं का क्या रोल रहा हमारे देश को आजादी दिलाने में. साथ ही सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे राइटिंग में भी ये पर्टिकुलर सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ही ऑल्सो showed thanks to the Mangal Pandey, Tatya Tope, Bhagat Singh, Sukhdev Rajguru, Chandrasekhar Azad, Ashfaqullah Khan, and Ram Prasad Bismil. He also remembers the tribal leaders like Tirath Singh, Bhagwan Birsa Munda, Sidhu Kunu, Alluri Sitaram Raju for their freedom struggle and for the inspiration that they created among all the tribal community. Let's understand about these leaders one by one. Tirath Singh, who was a Khasi chief, realized the duplicity of the Britishers and waged war against them. Later on, he was captured, tortured, and imprisoned. Then he died. The next is Sidhu and Kanu Murmu. They were the leaders of the Santhal rebellion from Jharkhand and Bengal. They fought against the Britishers and the corrupt zamindari system. Later on, they were captured and they were hanged. The next is Bhagwan Birsa Munda, who was from the Munda tribe, was a young freedom fighter and a tribal leader who became legend in his opposition to the Britishers. He led the Mundas in series of confrontation with them. He was caught and imprisoned, and according to British records, he died due to the cholera when he was only 25 years of old. Next is Alluri Sitaram Raju. He was an Indian revolutionary who was involved in the Indian independence movement. He became a sannyasi at the age of 18 years old. Soon he involved in opposing the Britishers in response to the 1882 Madras Forest Act, which effectively restricted the free movement of Adivasis in their forest habitat and prevented them from practicing a traditional form of agriculture known as pondu. He engaged in guerrilla campaign against the Britishers' colonial authorities. So all these particular sections are very important because कहीं ना कहीं इससे deep questions आपसे पूछे जा सकते हैं. Like President Draupadi Murmu, उन्होंने भी उनके टाइम पे कुछ rebellious movements का नाम लिया था, like Santhal movement, Bhil revolt, and so on. Next, Prime Minister Modi ji remembered the nation builders like Dr. Rajendra Prasad, Nehru ji, Sardar Vallabhbhai Patel, S.P. Mukherjee, Lal Bahadur Shastri, Deen Dayal Upadhyay, J.P. Narayan, Ram Manohar Lohia, Vinoba Bhave, Nanaji Deshmukh, Subramanyam Bharati during the 14th August 1947. बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, लोगों की जानें चली गई, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, कुछ को अपनी मर्जी से, कुछ को बिना मर्जी से. So all these were the points that he also mentioned in his speech. Pradhan Mantri Shri Narendra Modi also called for the Panch Pran for Amrit Kal. Those are roadmap for 2047. These Panch Pran are as follows. The first one is the goal of developed India. He urged the people of India to have bigger resolve and resolve for a developed India. He also asked everyone to think about the struggle for independence during the 1940s. He said the freedom struggle had resolved for independence and they achieved it. Similarly, Indians must resolve for developed India. फॉर डेवलप्ड इंडिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम HDI में अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें. अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया का HDI जो वैल्यू है दैट इज 0.645. To become the developed country, it is very important for us कि हम 0.800 के पॉइंट को क्रॉस करें. Like अगर हम प्रेजेंट अचीवर नॉर्वे की बात करें तो उसका जो HDI वैल्यू है दैट इज 0.957 और हम इससे बहुत दूर कहीं पर लैग बिहाइंड कर रहे हैं. सी अगर हम IMF के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो GDP है, नॉमिनल GDP दैट इज 3.35 ट्रिलियन, वेयर एज जो हमारा GBT पर कैपिटा इनकम है इट इज $2500. तो
किसी भी कंट्री को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसे अपना पर कैपिटल इनकम स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. द सेकंड प्रण ही टॉक्ड अबाउट इज द रिमूव ऑफ एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट. He urged the Indians to get go of all the traces of servitude. He called for the decolonization and urged everyone to look for the traces of slavery within and around them so that India could completely eliminate the traces of servitude. He also pointed out that because of the colonialized mindset, talent in India often gets stuck in the schedules of the languages. He said that the people of India too should be very proud of the Indian language, whether they know them or not. As our ancestors give those languages to the world, we should be very proud on it. देखिए colonial mindset को जब हम दूर करने की बात करते हैं तो this is the biggest trace that we still witness today. अगर किसी को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती तो हम उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, हम उसकी हंसी उड़ा देते हैं. बट वी शुड अवॉइड such things. We should be very proud what we have, what our ancestor gave to us. The third prana he talked about is the pride in our roots. देखिए जब भी हम roots की बात करते हैं, ancient India की बात करते हैं, तो we have witnessed that we had greatest legacy. Still we do have. It's just कि हम कहीं ना कहीं उस legacy पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने लगे हैं यार, और एल्स हमें उस लेगेसी के बारे में आइडिया ही नहीं है. ही ऑल्सो मेंशन कि हमारे एंसेस्टर को कितना सारा नॉलेज था जब हम नेचर की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, या जब वर्ल्ड हमारी तरफ किसी भी सॉल्यूशन को लेकर देखता है, इंडिया ऑल्सो केम फॉरवर्ड और उनकी हेल्प करता है. जब हम बीमारियों की बात करते हैं, इंडिया ने आयुर्वेदा दिया. जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इंडिया ने मेडिटेशन दिया, योगा जैसी टेक्निक्स दुनिया को बताई. सो वी शुड बी वेरी प्राइड इन आवर रूट्स. फोर्थ प्रण ही टॉक्ड अबाउट इज द यूनिटी. Unity is very important when it comes to India. He talked about unity and urged that everyone should work together for the betterment of the country. देखिए ये यूनिटी ही थी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से, इस डिसयूनिटी की वजह से हम स्लेवरी का शिकार रहे 300 सालों तक. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अलग होने की जगह एक होने की बात करें. दिस व्हाट ही टॉक्ड अबाउट. And the fifth plan he talked about is the sense of duty among the citizens. जब इन्होंने citizens के बारे में बोला है, he also talked about the prime ministers and chief ministers of the state कि उनकी भी जो ड्यूटी है, they should also fulfill those duties. जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज. The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of USSR. The fundamental duties were not the part of the original Constitution, whereas in 1976 the Congress Party set up the Sardar Swan Singh Committee to make recommendation about the fundamental duties. The committee suggested the incorporation 8 fundamental duties in the Constitution, but government includes 10 fundamental duties under Part 4A through the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. But later on, with the Constitutional Amendment Act 86 in 2002, one more duty added under Article 51A. These fundamental duties are confined to the citizens only and do not extend it to the foreigners. Some of them are moral duties while others are civic duty. They refer to such value which had been a part of Indian tradition, mythology and practices. Generally, fundamental duties are non-justiciable in nature, but in some cases they are, like to insult the national flag, monuments and so on. The Constitution does not provide for their direct enforcement by the center. However, Parliament is free to enforce them by suitable legislation. So, फंडामेंटल ड्यूटीज के सेक्शन में दी है, उनका क्या रोल है और क्या हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पेपर जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Next, he talked about the role of women in the nation development. He said that in the upcoming 25 years, there will be n number of growth for the women's. जब हम women's की growth की बात करते हैं, he also talked about the women of India had shown their worth in the field of sport, defense, and more. The more opportunity we give to our daughters, they will return
to the country in the multifold, which will help the country to progress much faster. ये सेक्शन हमारा वुमेन्स के रोल को लेके, नेशन डेवलपमेंट को लेके, चाहे आजादी दिलाने की बात हो या नेशन बिल्डिंग की बात हो या प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वुमेन के रोल की बात हो, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही ये हमारे लिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. He also talked about the unity that should reflect inside the home. He talked about the gender equality कि भाई इक्वालिटी की शुरुआत घर से होती है. एवरीवन शुड ट्रीट देयर डॉटर एंड सन इक्वली. एक और बहुत बड़ा रोष प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, एंड ही वाज वेरी सैड अबाउट इट, जो हम सभी को आई गेस याद रखना और उसके बारे में कुछ काम करना जरूरी है. इट्स अबाउट इंसल्टिंग वुमेन्स. हम कहीं ना कहीं आज कुछ ऐसे लैंग्वेजेस का यूज करने लगे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करने लगे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे शब्द होते हैं, जो विमेन्स की जो dignity है उसको हैम्पर करते हैं. So he said that it is important that in speech and conduct we do nothing that lowers the dignity of the women. Next, प्रधानमंत्री gave a new slogan, that is जय अनुसंधान. See, हम सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया. Then Atal Bihari Vajpayee added जय विज्ञान to it and it became जय जवान जय किसान and जय विज्ञान. Now Pradhan Mantri Modi added Jai Anusandhan, that is research and innovation. When we talked about the Atmanirbhar Bharat या colonial mindset से बाहर हमें आना है, then research and innovation plays a very important role. Revolutionary changes are coming with the digital transformation, whether it is the education sector, whether it is the health sector or it is the agriculture sector. इन सभी में हमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. इंडिया के इस डेकेड को हमें टेकेट की तरफ लेके जाना है. टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हमें होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब हम रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कहीं ना कहीं पॉसिबल है. ही मेंशन्ड भीम यूपीआई. आज आप देखिए, आज हम छोटे छोटे अमाउंट्स को पे करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, नोबडी इज रशिंग टुवर्ड्स द बैंक, एवरीवन इज यूजिंग भीम यूपीआई. चाहे वो कोई स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे कोई बड़ा सा होटल हो, एवरीवन इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेम यूपीआई. तो we have seen this difference. जब से डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ है, we have seen this drastic change कि कैसे जिसको ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में कुछ नहीं पता था, नाउ दे नो एवरीथिंग अबाउट इट. सो डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर में इंडिया आत्मनिर्भर बन गया है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन रहा है. ये कहीं ना कहीं इंडिया के होलिस्टिक अप्रोचमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ही ऑल्सो फोकस्ड कि हमें भाई मेट्रो सिटीज को डेवलप करने के लिए अकेला काम नहीं करना है. We should be very much focused about the tier 2 and tier 2, 3 cities as well. Next, he mentioned कि जो भी हमारा डिजिटल इंडिया से रिलेटेड मिशन रहे हैं, लाइक अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू क्रिएट एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप across the length and breadth of our country. Whereas Atal Tinkering Lab is the state-of-the-art space established in a school with a goal to foster curiosity and innovation in young minds between grade 6 to 12th across the country through 21st century tools and technology. देखिए, जब हम टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होने की बात कर रहे हैं या एम्फसाइज होने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे नाउ दे आर creating and making robots, they are creating new technology. रिसेंटली अभी हमें पता था, जो एक सबसे छोटा कमर्शियल सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया था, वो भी किसकी हेल्प से बनाया गया था? स्कूल के बच्चों की हेल्प से बनाया गया था. सो आजादी सैट वाज द नेम. तो ये कहीं ना कहीं हमको इस तरीके के पॉइंट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम इंडिजीनियस डेवलपमेंट या आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं. नेक्स्ट, 5G नेटवर्क के बारे में प्रधानमंत्री जी टॉक्ड अबाउट कि 5G नेटवर्क के आने के बाद पूरा जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है हमारा इन द डिजिटल इंडिया, वो हेड टू टो चेंज हो जाएगा. सेम गोज विद ऑप्टिकल फाइबर. इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरीवन. आप सभी को याद होगा, देयर वाज अ टाइम, आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात कर लें, कि इंटरनेट हम चला तो रहे हैं बट इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत सोच सोच के चलाते हैं, या कुछ टाइम पहले तो भाई फोन ही एक्सेसिबल नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये पॉसिबल हो पाया है कि एक रेल
में कुली का जो काम कर रहा है वो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं। क्यों? गाँव में बैठा हुआ बच्चा आराम से आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ पा रहा है, नई-नई टेक्नोलॉजी सीख पा रहा है, पढ़ाई के आयाम उसके लिए ओपन हो गए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? ओनली बिकॉज़ कि हम टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो चुके हैं। जब 5G जैसी सर्विसेज़ भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चालू हो जाएँगी, तो जो भी हमारे छूटे हुए एरियाज़ आज की डेट में रह गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ये पर्टिकुलर सेक्शन जो हमारा है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 5G या ऑप्टिकल फाइबर कैसे इंडिया को चेंज कर देंगे। इन द मैसेज टू द सिटीजन्स ही सेड दैट आत्मनिर्भर हम सभी को बनना बहुत ज़रूरी है। जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो ये हमारा सबका यूनिफाइड सोशल एजेंडा होना चाहिए। ठीक है? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स को मिलके काम करना चाहिए आत्मनिर्भर भारत के लिए। प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर जो स्वदेशी हों इन नेचर। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हमें फोकस करना चाहिए, हमें ग्रीन जॉब्स की साइड फोकस करना चाहिए। ही आल्सो एम्फसाइज्ड कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी या अपने देश को आगे बढ़ाना है तो स्वदेशी हमें होना पड़ेगा। हमें मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आज आप देखो तो इंडिजीनियसली बिल्ड बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमें देखने मिल रही हैं। जैसे ब्रह्मोस, जैसे विक्रांत, जैसे आज जो यूज हुआ है पहली बार हार्डजर, तो ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत आपको कैसे एमएसएमई सेक्टर को अपलिफ्ट करने में काम कर रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं कि बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर भारत आज जो छोटा सेक्टर है माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज का, या जो गांव में इंडस्ट्रीज थी या जो सेक्शन था, आज वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहा है एंड वो अपनी चीजें बेच रहे हैं और लोगों में भी ये एटीट्यूड आया है कि वो इंडियन मेड चीजों को परचेज कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली हम आत्मनिर्भरता की ओर टोटली शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के कुछ 5 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिसके लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है। दोज आर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। आप अपने एग्जाम्स में आत्मनिर्भर भारत में इन 5 पिलर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट करना है तो उसे इन 5 पिलर्स में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज पिलर वन बाय वन। द फर्स्ट इज इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए इट्स अ बैकबोन। तो हमें इकोनॉमी में आत्मनिर्भर बनना है। हम बहुत सारी चीजें आज की डेट में भी इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो हमारा जो भी फॉरेक्स है वो ऐसी चीजों पे ज्यादा खर्च हो रहा है। हमें इम्पोर्ट पे अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी होगी। हमें देश में बनी हुई चीजें या डोमेस्टिक प्रोडक्शन को थोड़ा बनाना होगा और इस लेवल पे बनाना होगा कि हम उसका एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाए। ये जो अमाउंट हम इम्पोर्ट में खर्च करते हैं उस अमाउंट का यूज हम देश को और ज्यादा विकसित करने के लिए कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आज गांव और शहर आपस में जुड़ गए हैं। इट इज वेरी एक्सेसिबल कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत आसानी से और बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आज नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के साथ जुड़ गया है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, और जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपस में मिल पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, पहले कोई चीज अगर नॉर्थ ईस्ट में बन रही थी तो उसको यहाँ तक आते आते वो पूरी खराब हो जाती थी और वो इतनी महंगी हो जाती थी कि हमें लगता था कि हमारे देश में बनी हुई चीजें तो इतनी महंगी है, इससे बेटर है कि हम बाहर की चीज खरीदें। तो हमने क्या किया, हम चाइना के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे या दूसरी जगहों के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। बट उसका सबसे बड़ा रीजन था उसमें लगने वाले एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सिस्टम। आर सिस्टम शुड बी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास होगी तो आप वर्ल्ड लीडर के रूप में बाकी लोगों से compete कर पाएंगे, वेदर इट इज द इंटरनेट, वेदर इट इज द ऑप्टिकल फाइबर, वेदर कि आप डिफेंस में या बाकी सेक्टर्स में कितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। नेक्स्ट इज द डेमोग्राफी। वी शुड हैव अ वाइब्रेंट डेमोग्राफी, क्योंकि हम भाई बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे हम बोल सकते हैं, तो हमारी डेमोग्राफी भी उतनी ही सुंदर और उतनी ही वाइब्रेंट और मजबूत होनी चाहिए। वन इज द डिमांड, दैट शुड बी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सारी चीजें हम आत्मनिर्भर भारत या इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इनका यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट मूव करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम का बहुत डायरेक्टली नाम लिया है, दैट इज पीएलआई स्कीम। लेट्स सी समथिंग अबाउट दिस स्कीम। PLI stands for the Production Linked Incentive Scheme for promoting telecom and networking product manufacturing in India. It aims to give companies incentive or incremental sales from products manufactured in domestic unit. PLI has been introduced to boost domestic manufacturing and cut down on import bills. This will encourage foreign companies to set up their production activities in India, whereas this will also support the existing domestic companies to expand their manufacturing units. Pradhan Mantri Modi ji also applauded the armed forces for their commitment to the Make in India. आप देखेंगे तो पहली इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट विक्रांत हमारे पास आ चुका है, ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास आ चुकी है, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग ब्रह्मोस एज वेल, वंदे भारत ट्रेन्स हमारे पास है, पहली बार इंडिजीनियसली मेड हार्डजर गन का यूज किया गया है इंडिपेंडेंस डे की सेरेमनी में। सो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि 75 सालों में हम कहीं जाकर अब इंडिजीनियसली स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इंडिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, एंड दिस इज ट्रू। इंडिया का फार्मर कहीं ना कहीं उसको अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। हमें फार्मर्स और फार्मिंग स्ट्रेटेजीज को सेल्फ रिलायंट बनाना होगा। नेचुरल फार्मिंग पे हमें फोकस करना जरूरी है, केमिकल फ्री फार्मिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब हम किसानी की बात करते हैं या कृषि की बात करते हैं। सो हमें अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वाटर करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, which is the raising crop without using any fertilizer, pesticides, or any external material. This should be very important. Green jobs are very important. These are the jobs which have direct positive impact on the planet and on overall environmental welfare. ये सारे जो पॉइंट्स हो जाते हैं आपके एनवायरमेंट पेपर से रिलेटेड और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कहीं ना कहीं यूरिया का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। सो हमें केमिकल फ्री फार्मिंग की साइड जाना है। केमिकल फ्री फार्मिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या टेक्निक्स आ सकती हैं, नेचुरल फार्मिंग क्या है, जीरो बजट फार्मिंग क्या है, वी शुड फोकस ऑन दीज सेक्टर्स। प्रधानमंत्री जी ऑल्सो सेड कि हम कहीं ना कहीं हमें अपने रूट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमने सॉल्यूशन दिए हैं दुनिया को, हमने आयुर्वेद दिया है, हमने योग दिया है। जब हम एनवायरमेंट फ्री लाइफस्टाइल या वीगन लाइफस्टाइल की आजकल बात करते हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें पहले से थी। मदर नेचर को वर्शिप करना ये हमारे कल्चर का पार्ट रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम सबके घरों में हमें देखने मिलता है, तुलसी के पेड़ हो जाते हैं, बरगद के पेड़ मिल जाते हैं, नीम के पेड़ हमें देखने को मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम इस रूट से दूर जा रहे हैं। सो प्रधानमंत्री जी ऑल्सो एम्फोसाइज कि अगर आप अपने कल्चर से जुड़े रहोगे तो आपको ये सब नया नहीं लगेगा। दिस इज नथिंग न्यू, हमारे एंसेस्टर ये चीजें हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। वी हैव टू बी वेरी मच क्लोज्ड विद आवर रूट्स, राइट। जब हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप पत्तलों में खाने का ट्रेंड चल रहा है। जर्मनी में आया कि भाई जर्मनी ने नए पत्ते की पैकिंग निकाल दी है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करें तो केले के पत्ते में खाना खाना या पत्तलों में खाना खाना हमारे यहाँ हमेशा से ट्रेडिशन रहा है। देखिए, इंडिया में हमेशा से रहा है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाइए, रात को 9 बजे सो जाइए। अब आप देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जिसके लिए नोबेल अवार्ड मिला है, वो भी यही बताती है। सो अगर हम अपने रूट से कनेक्टेड रहेंगे तो डायरेक्टली हम जो विश्व गुरु हमेशा से बोलते आ रहे हैं, हम डेफिनेटली विश्व गुरु हैं, एंड वी विल बी द विश्व गुरु अगेन। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कुछ संस्कृत के श्लोकों को यूज किया है जो हम अपनी आंसर राइटिंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सो वन इज द एकम सत विप्रा बहुधा विदंती, दैट मीन्स द true God is one, though the sages addressed him by the multiple names. Another one he used, Yat Pinde Tat Brahmande, all that is outside you is within you. The third one he said that Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जी also talked about the Trishakti, that is the aspiration, rebirth of the national consciousness and international perception. We have to focus on these things. He also thanks the constitutional framers and said who given us the federal structure that provided us with our way ahead. He also said that our way may be different, but the aim is same. While addressing the nation, प्रधानमंत्री जी said that corruption आज की डेट में कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है कि जो करप्टेड व्यक्ति है उसको सोसाइटी बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो प्रेजिंग दैम, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो उनको
बहुत अच्छा दिखा देते हैं और ये लोग पैसा लेके फरार हो जाते हैं। सो व्हाट ही सेड कि जब तक हम ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे सोसाइटी से, अंटिल अनलेस हम इन्हें एक्सेप्ट करना बंद नहीं करते हैं, तब तक ये करप्शन वाली जो चीज है ये खत्म नहीं होगी। ये करप्शन वाला जो सेक्शन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक है 85th। दैट इज नॉट गुड। नेक्स्ट ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नेपोटिज्म। ही सेड दैट टैलेंटेड जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती जो वो डिजर्व करते हैं। दो इट्स अ क्वाइट पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जिसके बाद काफी हमें स्टेटमेंट्स देखने मिले, बट ठीक है, अगर हम उसको पॉलिटिकली ना देखते एक हॉलिस्टिक व्यू में देखने की कोशिश करेंगे, सो ही आल्सो एडेड दैट नेपोटिज्म आल्सो लीड्स टू द करप्शन। वी हैव टू क्लीन द पॉलिटिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम द नेपोटिज्म। क्यों? क्योंकि टैलेंट को बाहर आने के लिए परिवारवाद का खत्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है यूथ का कि भाई आप वो लोग हैं जो आज 25 साल के हैं, जो अपना करियर बना रहे हैं, साथ में ही आप अगले 25 सालों में नेशन को भी बिल्ड करेंगे। क्योंकि जो आज 25 साल का युवा है वो आने वाले 25 वर्षों के बाद जब देश 100 साल अपने इंडिपेंडेंस के एंजॉय कर रहा होगा, यही युवा 50 साल का हो चुका होगा। So he also said that it's a way ahead towards 100 years of independence. India's youth, who will be the decision maker of tomorrow, have to fulfill dual duties of building their careers as well as the future of the country. So this is it for today. और जो भी हमने सेक्शन पढ़े इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डेफिनेटली बता सकते हैं। Thank you for watching this video. Please join our batches for UPSC and MPPSC civil services examination. Seats are very limited. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.